आईएमए की भिवानी शाखा द्वारा हांसी रोड स्थित लीब्रा गेस्ट हाउस में सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार में चिकित्सकों को आने वाली परेशानियों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। सेमिनार में पुलिस के पहलुओं पर भी चर्चा हुई कि कार्रवाई के दौरान चिकित्सकों को किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आईएमए की भिवानी शाखा द्वारा हांसी रोड स्थित लीब्रा गेस्ट हाउस में सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार में चिकित्सकों को आने वाली परेशानियों के बारे में मरीज के साथ हमारा वो ही घनिष्ठ रिश्ता हो जाता है और कुछ भी देकर हम उसकी जान को बचाना चाहते हैं। ये हम सबका अनुभव है। लोगों को देखकर अपने मन में और दिल में भी महसूस की है, ये नई नहीं है। मैं 30 साल से भिवानी में हूँ और इस तरह की हालात से पहले भी रूबरू हो चुकी हूँ। हमारे यहाँ के डॉक्टर सलना नाम कृष्णा कॉलोनी में, जिन्हें घर के बाहर ही मार दिया गया, आप लोगों को याद होगा। डॉक्टर रमन जो अपने हॉस्पिटल से घर की तरफ जा रहे थे, बीच में ही उन्हें शूट कर दिया गया। I understand the doctors bear their responsibility with due concern, with all their knowledge and all their good intentions. But there are some people in the fraternity that do not follow that code. I suppose the doctors take Hippocratic oath when they pass out from their institutes. But how many of them follow that oath during their careers? And there are some examples. Because of that, the trust between the society and the doctors has widened. Every institution in the society need to gain trust of the society. For example, police is one of the institutions. But there is a lack of trust between society and the police, and there are many instances where policemen was also attacked. I understand that in last 10-15 years, there have been many studies which they found that all the doctors that they surveyed, out of that 75% of the doctors said that they experienced some form of violence by the patients and their attendants. Only the physical violence is one part of it. But beyond that, there are mental harassment and verbal harassment and non-payment of dues and all these kind of things that doctors face. So in my opinion, the trust has widened, and then we can discuss along as we progress in this presentation, what are the factors that the government has done, what are the factors that the legal provisions are there to safeguard doctors, and other Supreme Court judgments are also there that safeguard the doctors against these kind of malicious prosecution. So those issues we will discuss during the presentation. But I think the trust factor that doctors need to earn back from the society. For the common person and the doctors who are differentiated, the Supreme Court was of the opinion that when rash and negligent act is when the doctors are treating a patient, if they are under constant fear of law, then they will not be able to operate. A surgeon whose hands are shivering when he is operating, he will not be able to operate a person. So that's why Supreme Court differentiated between a rash and negligent act by a common person and a doctor. And in this case, Supreme Court propounded that a private complaint into a medical negligence case. Sir, इसमें जाने से पहले हम बात करेंगे नेग्लिजेंस की। नेग्लिजेंस एक ऐसा एक्ट और एक ऐसा ओमिशन है, कोई भी आपकी ड्यूटी जो आपको करनी चाहिए थी या आपको नहीं करनी चाहिए थी और आपने वो परफॉर्म की या नहीं की। इसी तरह से जब मेडिकल फील्ड में जब हम बात करते हैं तो उस तरह की नेग्लिजेंस होती है, तो उसी नेग्लिजेंस को मेडिकल नेग्लिजेंस टर्म करते हैं। तो मेडिकल नेग्लिजेंस में अगर किसी डॉक्टर ने, जाहिर सी बात है नॉर्मली तो नहीं करेंगे वो, और एक्सेप्शनल केसेस में हो भी सकती है नॉर्मली, बट उसमें अगर मेडिकल नेग्लिजेंस करते हैं तो उनकी दो तरह की लायबिलिटीज़ बनती हैं। वन इज सिविल लायबिलिटी एंड सेकंड इज क्रिमिनल लायबिलिटी। Civil liability is somewhat entitles patient or his relatives to get damages in the form of compensation from the competent court of law, and for that purpose the patient or the relative has to file
a suit for damages in the competent civil court, and the patient or the relative has to prove that the doctor was negligent in performing his or her duties, and by way of such medical negligence, the patient suffered any loss of limb or injury or continuous hardship. Nowadays there is a general tendency among the people to extract money from the doctors. And to me, the main reason behind the death of Dr. Archana Sharma was that the local politician instigated the fellow one, the patient who died, the relatives of the patient, to extract money so that they could get easy money from the doctor. And there is also a general tendency among the general public, they think that doctors are earning so much out of the pockets of the patients, and if they get any chance to extract money from the patients, they could and they should. Thank you, sir. Treatment. And so, on account of that hardship, he is liable to be compensated. And for that purpose, he demands damages in the form of compensation from the court of law. And when the court awards compensation, that broadly we call it a civil liability of the doctor concerned, against whom the suit was filed. And if we talk about criminal liability is somewhat greater than civil liability. Criminal liability, doctor has to face the trial, and after getting requisite evidence which proves the guilt of the concerned doctor beyond reasonable doubt, and after the trial, after the conclusion of the trial, the court pronounced judgment, and court may send the concerned doctor or anyone any medico to the jail, and also may fine him. So that is the difference between civil liability and criminal liability. Basically, in civil liability we get compensation, or in criminal liability one has to face trial. Which ends in conviction or acquittal. And the degree of I can say the degree of proof is higher in criminal liability, and it is preponderance of probabilities in civil liability. कंप्लेनेंट ने क्या कहा जी, इस प्रकार के दोनों तरफ का वर्जन, कोई भी वर्जन के बगैर न्यूज़ कंप्लीट नहीं होती है। आमतौर पे उसकी नेचर देखी जाती है, वो किस नेचर की न्यूज़ है। कुछ नेचर की न्यूज़ ऐसी होती है कि हम उसको हिडन रखना पड़ता है, वो किसी डॉक्टर की प्रेस्टीज को दिक्कत करती है। लेकिन कई मामलों में जब ये मैटर देना आवश्यक हो जाता है, डॉक्टर का वर्जन लेते हैं, पुलिस का वर्जन लेते हैं, कंसर्न जो उससे संबंधित है उनका वर्जन लेते हैं। सर, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा, जब रात को मैं उसमें आप डॉक्टर का वर्जन लेते हैं काइंड ऑफ। सर, ये प्रैक्टिकली आपने बताइए, हम मीडिया के काफ़ी बार ऐसा होता है कि जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलनी होती है, हम उस तक पर्टिकुलरली हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, तो उस मामले में हम कई बार उस चीज़ को ओके, थैंक यू वेरी मच। जाते हैं। IMA द्वारा एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आयोजित हुआ, जुडिशरी, पुलिस, डॉक्टर्स, लॉयर्स सबको शामिल करते हुए प्रोग्राम किया गया, जिसमें मेडिकल नेग्लिजेंस से संबंधित जितनी भी बातें हैं, जितने लोग हैं, जितने प्रावधान हैं, सबके बारे में विस्तार से चर्चा की गई। साथ में डॉक्टर्स के द्वारा जो उनके लक्षण होते हैं, उनकी शिकायत होती है, उसके बारे में विस्तार में चर्चा की है। ये बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम रहा, जिससे हमें भी डॉक्टर के लक्षण होता है और इनकी जो भी शंकाएँ हैं उनको दूर करने की कोशिश की है। सर, ऐसे इन लोगों ने शिकायत दी है कि इससे हमने चर्चा के दौरान बताया कि इसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने की आवश्यकता है, ताकि हमारे एसएचओ में जागरूक रहे और हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी जागरूक रहे कि डॉक्टर्स के क्या अधिकार है और उनको किस तरह से उनके साथ उन्हें बातचीत करनी है, कैसे ट्रीट करना है। साथ में जज साहब ने कहा कि PLSA की कभी मीटिंग करवाएंगे, जिसमें सारे एसएचओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को बताया जाएगा, उनको भी सारे प्रावधान अधिकार है हमारे पास बताया जाएगा। हमारी आशा करते हैं कि भिवानी पुलिस की तरफ से कभी भी डॉक्टर्स को किसी भी तरह का हैरेसमेंट नहीं करना पड़ेगा और हम उनको अच्छी समय प्रदान करेंगे। तो एक प्राइवेट लैब है, वहाँ पर जो चर्चा ऑपरेशन में होने में कोई त्रुटि होती है या किस तरह का वो एक पर्सनल मुद्दा था, वो इस मुद्दे से संबंधित नहीं है, कोई अलग मुद्दा है। इसके बारे में 2 FIR हो चुकी है।
मेडिकल नेग्लिजेंसी एंड नो एंड इसमें दूसरी पुलिस मीडिया सब काम करके बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा। और जो डॉक्टरों के मन में भ्रांतियाँ थी और डॉक्टरों के मन में दिमाग में जो डर था वो क्या नाम है एसपी साहब ने पूरा भरोसा दिलाया कि हम डॉक्टरों के साथ हैं और डॉक्टर अच्छा मन से काम करें और मरीजों के वेलफेयर के लिए काम करें। और हम मतलब बहुत ही महफूज महसूस कर रहे हैं और भिवानी की जनता के लिए अच्छे से अच्छा इलाज करने के लिए। सर इस प्रकार की कोई दिक्कत जो बिहेवियर करता है तो उसकी पीड़ा होती है। जब मरीज पीड़ित होता है तो उसका जो मानसिक संतुलन है खराब हो जाता है और उस संतुलन में और कुछ नहीं, उसमें क्या नाम है माँ बहन की गालियाँ नहीं पड़ती डॉक्टर के प्रति तो प्रसाद तो देगा नहीं। तो ऐसी होती है स्थिति और मैं चाहता हूँ कि पेशेंसली इन चीज़ों को किया जाए तो बहुत ही अच्छा का नाम माहौल रहेगा और डॉक्टर भी ठीक रहेंगे और मरीज के साथ डॉक्टर चोली दामन का साथ हमेशा साथ रहेगा। हमारे एसपी साहब से और सीजीएम साहब से और मीडिया से इंटरेक्शन हुआ, उससे सडनली हम लोगों का डॉक्टर मनोबल बढ़ा है। जो आप भी सुनते होंगे चारों तरफ डॉक्टरों पर हिंसक समाज का एक रवैया आ गया है और मैं कहती हूँ कि इस तरह के सेमिनार से डॉक्टर अच्छे से इलाज कर सकेंगे, अपना जो काम है उनके कर सकेंगे और जो एग्जैक्ट रखी अगर मर गया मरीज तो क्या करें और उसको बिना देखे ही हम सीरियस पेशेंट को भेज देते थे तो ये समाज का बहुत अच्छा स्वास्थ्य होगा कि हम सीरियस पेशेंट के लिए भी अपनी हिम्मत जुटा पाएंगे और मैं यही है कि इस द्वारा हम भी हुए हैं और मीडिया का भी एक रुचि रखता है कि इस तरह के जो सेमिनार में उनका जो रिजल्ट निकला है कंक्रीट जो निकला है कि डॉक्टर को निर्भय होकर अपना काम करना चाहिए और पुलिस उनके साथ है, जज वगैरह से भी हमारी बहुत मीडिया के सामने नहीं आता। आप मीडिया जब डॉक्टर को अप्रोच करता है तो 100% मीडिया के सामने डॉक्टर आता है क्योंकि डॉक्टर कभी गिल्टी नहीं होता, डॉक्टर का कोई छुपाव नहीं होता, वो जो करता है खुल के करता है। पब्लिक का करता है तो पब्लिक के सामने करता है तो उसमें कोई छुपाव नहीं होता। जब भी एलिगेशन किसी भी पार्टी की द्वारा लगाया जाता है डॉक्टर पे आम तो उनके साथ बीतती है तो वो डॉक्टर को अपने सलाहकारों के मान के कोई कम्युनिकेशन नहीं करता ऐसा देखिए ये ना एक अनुभव पे डिपेंड करता है कि किस डॉक्टर का मीडिया से, किस डॉक्टर का पुलिस से, किस डॉक्टर का इससे कैसा अनुभव है। तो जहाँ तक मेरा अनुभव है मैंने हमेशा यहाँ से सहयोग भी पाया है और आगे भी सहयोग पाने की इच्छा है। हमारी दुनिया सब जुडिशरी हमारी जगह अपने आप को रख के ये देखे कि भाई कैसे डॉक्टर्स की परेशानी को कम किया जा सकता है। तो उस विषय में मैं समझता हूँ कि पुलिस प्रशासन जुडिशरी और डॉक्टर्स के बीच में आज जो ये सेमिनार होता है ये बहुत अच्छा शेयर का काम है। सर क्या मानते हैं ये जो गैप था काउंसलिंग से कम होता है और ये गैप क्योंकि हर रोज़ नया केस होता है। मैं आपको बताऊँ आज मैंने 2 केस किए, आप सरप्राइज करोगे कि दोनों केसेस में दोनों मुश्किल थे और दोनों में मैंने जो पहले डायग्नोसिस बनाया हुआ था ऑपरेशन रिपोर्ट के लिए और जो मैं सोच नहीं सकता था वो तो ये डॉक्टर कब किस परेशानी में फंस जाएगा ये सच्चाई ये है कि ये पता नहीं चलता, ये उसको खोलने के बाद और वो जो होता है कि हम ट्राई करते हैं और सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स मरीज की जैसा हम सोचते हैं वैसे नहीं करते। सर प्रशासन और सरकार कितनी हेल्प कर पाती है? प्रशासन साहब हेल्प कर सकते हैं। अब जैसे ये अर्चना शर्मा, डॉक्टर अर्चना शर्मा का राजस्थान में जो केस हुआ ये 302 के अंदर ना होता, 304 में होता तो शायद उस बेचारी को भी थोड़ा इतना प्रेशर नहीं होता और वो आत्महत्या करने से बच जाती। एकदम जैसे ये छपवा दिया कि भी 302 जैसे कि मार दिया, 302 तो ये है कि मर्डर वाला, वो ऐसा कोई भी नहीं चाहता। कोई भी जब वो जैसे पेशेंट ने जब हमारे को अपनी पूरी बॉडी सौंप दी तो फिर डॉक्टर ये नहीं सोचते कि पेशेंट का बुरा हो। राजनीति कुछ काम नहीं है, हाँ कुछ
राजनीति का कोई वो नहीं है, 99% राजनीति वालों का नहीं होता है। होता क्या है कि कई बार पेशेंट और डॉक्टर के बीच में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, जैसे अर्चना के केस में कुछ लोग आ गए, वो तो घर चले गए थे, ले गए थे और फिर घर से ले आए अस्पताल के सामने, फिर तुम पैसे दिलाऊंगा और पैसे भी कितने 50 लाख। इस तरह से कहाँ से कोई भी डॉक्टर शायद मैंने समझता कि डॉक्टर ठीक से कमाई करेगा, ठीक से काम करेगा, वो 50 लाख रुपया इस तरह का कंपनी दे सकता है। तो इस तरह के लोग बीच में आते हैं। 99% में बताता हूँ, हाँ मेरा भी अनुभव एक्जैक्टली यही है कि जो जिनको हम बताते हैं कि मरीज की हालत ये है, दाखिल वो तो होता नहीं है, कुछ और लोग आ जाते हैं, वो अंडरस्टैंड नहीं करते। धन्यवाद।